Okay. Let's complete remaining 50, 60 odd questions, and then we will move to the costs. Question number 135. Dash dash shows all the inputs. Dash dash shows all the input combinations that will produce the same level of output. Same level of output has to be isocont. Isocost line is a line which shows, right, all those combination of two inputs which cost you same. Isocont is a curve which shows all those combinations of the two inputs which gives you same output. Isocont, same output, same output. Isocost line, same cost. Expansion path or none of the above. It's isocont. Isocont is also called as production indifference curve. Yes. Is iso product curve iso equal product curve? Yes. ये iso होना चाहिए. Iso product curve होना चाहिए. Then equal product curve. Yes. All of the above. All of the above. 137. All of the following are the properties of isocont except. All of the following are the properties of the isocont except. Isocont is a downward sloping curve. Yes. It is a downward sloping curve. It is a convex to the origin. Right. So downward sloping curve. Higher isocont represents higher level of output. Yes. Two isoconts can intersect each other. No. A single combination can lie on a single isocont. One combination can lie only on one isocont. It cannot lie on two isoconts. Isoconts are convex to the origin. Do agree? An isocont slopes downward to the left, downward to the right, upward, upward, upward. तो कोई chance नहीं है. It moves from right to left, right to left. Next, 139. In the context of input output, in the context of input output relation, dash dash means same output produced from different combination of inputs. Same output produced with different combination. Law of variable proportion? No. Right. Ridge lines? No. Law of constant returns? No. Isocont. Then, and higher isocont denotes A. Higher isocont denotes higher level of output. A. Then, an isocont is producers indifference curve. Isocont is producers indifference curve. The rate of which rate at which चाहिए वो, rate at which चाहिए वो, the rate at which one factor of production can be substituted for the other. One factor can be substituted for other. Marginal, we are talking about the factor. अगर हम प्रोडक्ट की बात करते हैं, प्रोडक्ट, the rate at which one product can be substituted for another, MRS, marginal rate of substitution. We are talking about factor of production, input, right? So we are talking about the factor combinations, product combination, indifference curve, factor combinations, production optimization, isocont. The rate at which one factor of production is substituted for another is known as marginal rate of technical substitution.
because production function gives you technical relation. Production function gives you technical relation. This is a part of that production function, and therefore the word uses technical substitution. Then the slope of iso product curve shows, obviously iso product is marginal rate of technical substitution. There is no concept of the elasticity of iso product curve, ऐसी कोई concept नहीं है. And this is equal to change in the y upon change in the x. लिख लेना सामने फॉर्मूला, प्रैक्टिस हो जाएगी. Change in the factor y upon change in the factor x. y एक्सिस पे जो फैक्टर है, y एक्सिस पे उसमें जो सैक्रिफाइस होगा डिवाइडेड बाय x एक्सिस पे जो फैक्टर है उसमें जो गेन होगा, दैट इज सैक्रिफाइस अपॉन गेन. Then 143 done. An isocont is downward sloping and concave. No, it is a convex. Downward sloping and convex to the origin, yes. Downward sloping straight line, no. अगर ये straight line है, downward sloping straight line है, तो लिख लेना just for your information. The two factors or inputs are perfect substitutes. हमने indifference curve में सीखा था, indifference curve which is a straight line, downward sloping straight line like this. ये जो हमने देखा था marginal rate of substitution remains constant. क्या देखा था? Marginal rate of substitution, MRS remains constant. वो कहाँ पे होता है? When the two products, two goods, two services are perfect substitutes. So yes, indifference curve can be a straight line downward sloping, convex to the origin चाहिए तो, downward sloping straight line. In that case, the product on x-axis and product on y-axis is a perfect substitute, and the MRS remains constant. अगर हम आइसोकॉन्ट ऐसे देखते हैं, आइसोकॉन्ट मतलब one factor, the factor or inputs are perfect substitutes of each other. Substitutes of each other, इसका मतलब ये हो गया. If your isocont is a downward sloping straight line, it means x axis पे जो factor है labor and y axis पे जो factor है suppose capital, they are perfect substitute. इसका मतलब ये हो गया, that is marginal rate of technical substitution. I don't know क्या हो रहा है. Technical substitution is constant. Marginal rate of technical substitution is constant. The factor or inputs are perfect substitutes of each other. Marginal rate of technical substitution constant, which is not possible, right? This is not possible. Why? हमने देखा है factors of production cannot be perfect substitute. Products can be perfect substitutes. Products can be perfect substitutes, but inputs can never be perfect substitute. Labor cannot replace capital exactly. Capital cannot replace labor exactly. अगर ऐसे होता, if the inputs are perfect substitute, तो हमें लिख लेना कहाँ पे, if inputs had been perfect substitute, ये होता नहीं है, but अगर होते, लिख लेना, if inputs had been perfect substitute, then MP, marginal product, would never decrease. लिख लेना, if inputs had been perfect substitutes, अगर होते perfect substitute होते, तो इनिशियल स्टेज में मेरे पास फिक्स फैक्टर ज्यादा है, वेरिएबल कम है.
फिक्स फैक्टर ज्यादा है, वेरिएबल फैक्टर्स कम है, तो फिक्स फैक्टर्स ने वेरिएबल का काम किया होता। सेकंड स्टेज में मेरे पास वेरिएबल फैक्टर ज्यादा है, फिक्स फैक्टर्स कम है, वेरिएबल ने मेरा फिक्स का काम किया होता। मुझे कोई जरूरत ही नहीं होती, इवन विथ फिक्स फैक्टर्स में प्रोडक्शन कर पाता, इवन विथ वेरिएबल फैक्टर में कर पाता, अगर वो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है। लेबर कैपिटल का काम करता, कैपिटल लेबर का काम करता, बट ऐसे होता नहीं। अगर इनपुट्स आर फिक्स फैक्टर्स, देन मार्जिनल प्रोडक्ट वुड नेवर डिक्रीज, कभी डिक्रीज ही नहीं होता, हमेशा इंक्रीज होता। मतलब आप हमेशा फर्स्ट स्टेज में रहते हैं, आप कभी सेकंड स्टेज में या थर्ड स्टेज में जाते ही नहीं। दैट इज राइट, एंड देयरफॉर दैट इज नॉट पॉसिबल। सो लिख लेना, which is not possible, which is not possible as, which is not possible as as two factors can never be perfect substitutes. If they had been perfect substitutes, MP would never ever decrease. समझा? इसलिए देखो, मैंने बोला, मैंने इंडिफरेंस कर्व में तीन इंडिफरेंस कर्व दिखाए थे, ध्यान देना। मैंने बोला था नॉर्मल इंडिफरेंस कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। commodity good product x, product y and product x, they are not perfect, they may be close substitute, but they are not perfect substitute in this diagram. दूसरी मैंने बोली थी परफेक्ट सब्स्टिट्यूट वाली indifference like this. In this case product y and product x are perfect substitute because indifference curve, this is IC, indifference curve in this diagram is a straight line downward sloping straight line, like demand curve. It means the two, it means the two products, two goods or two services are perfect substitute and their MRS is constant. यहाँ पे MRS decreasing है, यहाँ पे MRS constant है, जितना भी होगा constant होगा. It can be 1, it can be half, it can be 2, it can be 10, it can be 50, जो भी होगा constant होगा, is constant. And अगर वो perfect complementary goods होते हैं तो it is convex but L-shaped convex to the origin. So in that case y and x निकालो वहां पे डायग्राम, कोई फर्क नहीं पड़ता. So ये जो फर्स्ट डायग्राम है that is consumers indifference curve, normal goods may be close substitute, may be close complementary goods, ठीक है, और may be unrelated goods, कोई फर्क नहीं पड़ता. The diagram 2 is a IC in which वो ऐसे IC है जिनमें the two commodities, two products are perfect substitutes having MRS constant, and the third one, right, is the IC of perfect complementary goods, and isocont is always and always this. Because try to understand, for a producer, हमने लॉ ऑफ सप्लाई में देखा था, prices of related goods is one of the determinants of the supply. And तब मैंने बोला था जैसे कंज्यूमर के रिलेटेड गुड्स कैन बी सब्स्टिट्यूट्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, प्रोड्यूसर के लिए रिलेटेड गुड्स आर नेवर सब्स्टिट्यूट्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. ही नेवर थिंक्स प्रोड्यूसर
कि उसका कोई सब्स्टिट्यूट है, उसका कोई कॉम्प्लीमेंट, मतलब ट्राई टू अंडरस्टैंड, उसके लिए अदर गुड्स आर नॉट सीन एज अ सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. सो यहाँ पे राइट, दिस इज IQ इन डिफरेंस कर्व. सपोज 10,000 मीन्स 10,000 यूनिट्स. ठीक है. सो इनपुट y एंड इनपुट x, समझ में आ रहा है? ऐसे अलग उसमें IQ नहीं रहेगी, एक ही टाइप की IQ रहेगी. आइए नेक्स्ट, हम कहाँ पे लिख रहे थे? यहाँ पे. सो अगर आपको कोई पूछता है इफ टू इनपुट्स आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, विल लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन अप्लाई? विल नेवर अप्लाई. और इफ इट अप्लाइज, राइट, इट विल बी ऑलवेज एंड ऑलवेज इन द फेज 1. समझ में आ रहा है? बट वैसे होता नहीं. ट्राई टू अंडरस्टैंड. आगे, ठीक है. What my law of variable proportion says, as we increase variable factor on given quantity of indivisible fixed factor, क्या बोल रहा हूं? ध्यान देना. As we increased, क्या बोल रहा हूं? ध्यान देना. As we increase number of variable inputs, variable factor on given indivisible fixed factors, the marginal physical productivity of variable factor will eventually decline. Marginal physical productivity of variable factor, MP of labor, will eventually decline. This is because the factors of production are not perfect substitute. If they had been perfect substitute, then there is no scarcity and there is no abundancy. राइट, ज्यादा भी और कम का कोई सवाल ही नहीं आता. राइट, डॉक्टर सीए का काम करेगा, सीए इंजीनियर का काम करेगा, इंजीनियर डॉक्टर का काम करेगा, कोई कुछ भी काम करेगा. ऐसे होता नहीं. ट्राई टू अंडरस्टैंड. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो लॉ का स्टेटमेंट बहुत क्लियर है. राइट, ये स्टेटमेंट याद होना चाहिए या उसका मीनिंग समझो. जब हम लेबर इंक्रीज करेंगे ऑन गिवन फिक्स फैक्टर्स, जब हम लेबर इंक्रीज करेंगे ऑन गिवन फिक्स कैपिटल, the MP will eventually decline. MP of variable factor will eventually decline. Then, मतलब efficiency will eventually decline. The convexity of isocont is due to obviously diminishing MRTS. वहां पे भी हमने देखा था diminishing MRS is a reason for convex shape of the IC. अगर ये करोगे तो इंडिफरेंस करो का रिवीजन होगा, इंडिफरेंस करोगे तो इसकी रिवीजन हो जाएगी. और दोनों हमेशा साथ में पढ़ना है. ठीक है. कॉन्वेक्सिटी ऑफ एन आइसोकॉन्ट इंप्लाइज डैश डैश स्लोप, इट इज डिमिनिशिंग. MRTS will decrease. आगे, if marginal rate of technical substitution is constant, then isocont is, देखो अभी हमने डिस्कस किया था, अगर कोई भी स्लोप कांस्टेंट होता है तो इट इज अ स्ट्रेट लाइन. ठीक है. डाउनवर्ड स्लोपिंग कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, नो. दिस इज MRTS decreasing, is decreasing. Downward sloping straight line curve, right angle curve, no. Downward sloping concave to the origin, no. ठीक है. बट ऐसे होता नहीं, ये भी समझ में आना चाहिए. If marginal rate of technical substitution for x of x on y, in this case x is a gaining and y is a sacrificing, is increasing. अगर वो इंक्रीज होता है, अगर स्लोप इंक्रीज होता है तो यू विल गेट अपवर्ड स्लोपिंग कर्व. राइट, डाउनवर्ड स्लोपिंग नो, डाउनवर्ड स्लोपिंग नो. अगर स्लोप ही इंक्रीज होता है, स्लोप इज इंक्रीजिंग, स्लोप, MRTS इज स्लोप ना, दिस इज स्लोप. अगर स्लोप इंक्रीजिंग है तो कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग. दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग. राइट एंगल कर्व नो, राइट. डाउनवर्ड स्लोपिंग नहीं तो राइट एंगल रहेगा जिसमें स्लोप इंक्रीज होगा, ऊपर जाएगी ना, राइट एंगल ऊपर जा रही है. देन लेट मी चेक. नो नो, एक सेकंड. उन्होंने क्या बोला है? डाउनवर्ड स्लोपिंग कॉन्केव टू द ओरिजिन भी है. लेट मी सी. डाउनवर्ड स्लोपिंग कॉन्केव टू द ओरिजिन लाइक दिस.
कॉन्केव ऐसे रहेगी ना, कॉन्केव ऐसी होती है ना, आई डोंट नो द कॉन्केव शेप, कॉन्वेक्स ऐसे, तो कॉन्केव ऐसे ही रहेगी। ओके, आई विल एग्जैक्टली चेक 148। मुझे कॉन्केव का एग्जैक्ट स्लोप नहीं पता, आई नीड टू आस्क मयूरी मैम, शी कैन हेल्प मी आउट। ठीक है, या तो आंसर मुझे लगता है फिर कॉन्वेक्स का स्लोप, कॉन्वेक्स का डाउनवर्ड स्लोप होता है, तो अपवर्ड स्लोप कॉन्केव का रहेगा मेरे हिसाब से। अगर मैं ऑप्शन देखता हूं ना, इफ आई डोंट नो तो आई कैन यूज माई लॉजिक, मेरे हिसाब से आंसर डी होना चाहिए। बिकॉज इंडिफरेंस कर्व में हमने देखा था, अगर इंडिफरेंस कर्व कॉन्केव रहेगी तो स्लोप इंक्रीज होगा, विच इज नॉट द रियलिटी। इसलिए यहाँ पे भी अगर मैं वो अप्लाई करता हूँ, अगर आपका स्लोप इंक्रीज हो रहा है तो इट शुड बी कॉन्केव टू द ओरिजिन, शुड बी। मैं आई विल कंफर्म इट, मैं 100% नहीं, मुझे वो देखना पड़ेगा ज्योमेट्री में एक्चुअली उसका कैसे रहता है, क्या रहता है। ठीक है, इफ एनीवन नोज दे कैन हेल्प मी आउट, अदरवाइज ऑब्वियसली आई विल आस्क प्रॉपर पर्सन। ठीक है, मेरा एक काम हो चुका है, राइट, मतलब आई डोंट रिक्वायर दिस स्लोप्स नाउ, जस्ट यहाँ पे सिखाने के सिवा मुझे कोई जरूरत नहीं उनकी। आगे आंसर शुड बी डी मेरे हिसाब से। अरे गूगल पे देखो ना, ठीक है, वो बाद में देखेंगे फिर। आगे, अच्छा ठीक है, कॉनकेव, अरे तुम लोगों को पता होना चाहिए यार। अरे वो मेरे 9th 10th में था वो, लेंसेज का था कुछ तो, यार कहाँ से पता चलेगा मुझे, नहीं यार ये, अच्छा कॉनकेव ऐसी होती है क्या? अरे बराबर है फिर, कॉनकेव अपवर्ड स्लोपिंग है, ये कॉन्वेक्स है, ये कॉनकेव है। आई नीड टू चेक एग्जैक्टली। हाँ देखो, कौन इधर दिया है, देखना पड़ेगा, इसे मैं बोल नहीं सकता एग्जैक्टली exactly. अच्छा, कॉनकेव अपवर्ड भी होता है, कॉनकेव डाउनवर्ड भी होता है। ओके, आई विल आस्क द फैकल्टी, आई विल रिसर्च इट एंड आई विल टेल यू टुमारो, डोंट वरी। ठीक है, ऐसे है। 149, right angled isocont denotes that, right angled isocont denotes that। ठीक है, the two factors are perfect substitutes, two factors are imperfect substitute, right angle रहेगा तो complement रहेगा, right, two factors are perfect complement। अगर वो perfect substitute रहेगा तो ऐसे होता नहीं, इन्होंने क्वेश्चंस बनाए हैं खुद के, ठीक है, ऐसे होता नहीं, बट आपको पता होना चाहिए। अगर राइट एंगल्ड है मतलब वो रहेगा आपका परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री। आगे, MRTS x on y is constant if two factors are perfect substitutes, obviously। marginal rate of technical substitution of x on y, कभी कभी क्वेश्चन में y on x लिखते हैं और हम ये ना आंसर गलत लेके आते हैं। x is यहाँ पे gain and y is a sacrifice, if you remember, notation is very important, x on y means x is a gaining, y is a sacrificing, my formula is sacrifice upon gain। अब उस एंगल से लिखो, sacrifice upon gain, so it is change in the y upon change in the x, change in the y upon change in the x can also be written marginal productivity of x upon marginal productivity of y, ऐसे भी लिखते हैं। so a is a correct, marginal productivity of x upon marginal productivity of y is also correct, ये भी correct है, right, so answer is all of the above, D, all of the above। ठीक है, then देखो कंज्यूमर के लिए यूटिलिटी एंड प्रोड्यूसर के लिए मार्जिनल प्रोडक्ट। ठीक है, देन
और मैंने आपको डिफरेंस लिख के दिया था आईसी एंड आईक्यू। उसमें मैंने बोला था कि कंज्यूमर के टाइम हम यूटिलिटी देखने की, मार्जिनल यूटिलिटी, प्रोड्यूसर के टाइम हमने मार्जिनल प्रोडक्ट देखने का। इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्स एंड वाई would happen only when, right, dash dash operate, increasing marginal rate of technical substitution, law of increasing returns, law of diminishing returns, law of constant returns, law of negative returns. Increasing marginal rate of technical substitution, increasing marginal rate of technical substitution could happen only when dash dash operate, law of increasing returns, law of diminishing returns, law of constant returns, law of negative returns. I'm not that sure. Increasing marginal rate of technical substitution means sacrifice actually diminish होता है ना, marginal rate of technical substitution decrease होता है, मतलब the rate of sacrifice decrease होता है। यहाँ पे अगर ये increase हो रहा है इसका मतलब क्या? ओके, आई विल गेट यू बैक, मुझे इसका एग्जैक्ट नहीं पता, मुझे चेक करना होगा, ठीक है। दीज आर सम क्वेश्चंस, थोड़ा मुझे ग्राफिकली देखना पड़ेगा उसको, ठीक है। ये दोनों मेरे पास होल्ड पे है, कौन कौन से, 148 एंड 150, 152। आई विल गेट बैक टू यू टुमारो, मैं इसका आंसर दे दूंगा, विद नीड टू रिसर्च समथिंग, ठीक है। अपने बुक में नहीं है ऐसे कोई, मतलब ऐसे के मॉड्यूल में नहीं है क्वेश्चंस, या कहाँ पे लिखा भी नहीं है ये, लेकिन मुझे चेक करना होगा प्रॉपर, थोड़ा एक्चुअली कॉनकेव कॉन्वेक्स पे और रिसर्च करना पड़ेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। Which of the following isocont indicates? Which of the following isocont indicates that two factors x and y are imperfect substitutes of each other? Are imperfect substitutes, right? यहाँ पे वो perfect substitute होंगे, यहाँ लिख लेना, यहाँ पे perfect substitute, perfect substitute। यहाँ पे ये perfect complementary goods है, perfect complementary goods, and they are imperfect substitutes। Convex है ना, ठीक है। ऐसे तो कर्व का कोई सवाल नहीं, so answer is C, answer is C। Then at a point near the right hand below corner of isocont, अच्छा, right hand, this is right, right to left, right to left, at a point near the right hand below corner of isocont, right hand below corner, the marginal rate of technical substitution of x on y, of factor x for factor y is, बिलो कॉर्नर बोल रहे हैं, मतलब कहाँ पे, नीचे बोल रहे हैं वो, कहा यहाँ पे, इस पॉइंट्स पे, ठीक है। एट द पॉइंट नियर द राइट हैंड बिलो द कॉर्नर, बिलो द कॉर्नर ना, नीचे, the marginal rate of technical substitution will be less, very high, very low, zero, neither high neither low, very low। देखो, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन डिक्रीज होगा, यहाँ पे हाई रहेगा, यहाँ पे वो लो रहेगा। एज यू कम डाउनवर्ड ऑन IC कर्व और IQ कर्व, द स्लोप विल डिक्रीज, स्लोप विल डिक्रीज, मतलब marginal rate of substitution or marginal rate of technical substitution will decrease. So below corner it will be very low, right? And above वो क्या रहेगा, very high। So answer is very low। Then convexity to an isocont denotes that two factors are not perfect substitute at
are not perfect substitute, means imperfect substitutes. Two factors are not imperfect substitute. Then two factors are imperfect substitute, are not perfect substitute, means they are imperfect substitutes. Then 156, in order to increase output, अगर आपका output increase करना है, if both inputs must be increased in the fixed proportion, दोनों inputs increase करने, means we are talking right of change in the scale. It follows that both inputs are dash dash of each other. हाँ yes, देखो अगर हमें इनपुट इंक्रीज करना है, हमें आउटपुट इंक्रीज करना है, बोथ इनपुट्स मस्ट बी इंक्रीज इन द फिक्स प्रोपोर्शन. मतलब एक इंक्रीज होगा तो दूसरा भी इंक्रीज होना चाहिए. समझ में आ रहा है? ऐसे कब होता है कि एक इंक्रीज होगा तो दूसरा भी लोगे, आप एक लोगे तो दूसरा भी लोगे, ये कॉम्प्लीमेंट्री के केस में होता है. सो दे आर परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री. सब्स्टिट्यूट में क्या होता है? इफ यू बाय वन यू डोंट बाय अदर. Like you have two factors, labor and capital. If you buy capital, you won't buy labor. If you buy one additional unit of capital, you won't buy labor, or you will sacrifice labor. Or if you buy one unit of labor, you will sacrifice capital. Substitute में क्या होता है? Try to understand. When two factors are substitute, if you increase one, you will decrease other. दोनों में से एक लोगे ऐसे. But अगर वो complementary factors are complementary, मतलब एक लोगे तो दूसरा भी लेना पड़ेगा. You have no other option. So input must be increased in the same proportion. It follows that both the inputs are perfect complementary of each other. लिख लेना perfect complementary. ठीक है? मतलब if suppose labor and capital are complementary, मतलब labor लिया तो capital लेना ही पड़ेगा. Like मोबाइल लिया तो चार्जर लेना पड़ता है. समझ में आ रहा है? अगर प्रिंटर लिया तो आपको पेजेस भी लेने पड़ेंगे. Are you getting my point? So एक आया तो दूसरा भी लेना पड़ेगा. Are you getting my point? अगर ऐसे है तो there has to be complementary goods. So in this case अगर हम input की बात कर रहे हैं तो inputs will be complementary inputs, right? Perfect complements. Then देखो these questions are not from the ICI module or like ये ICI की बुक में कहाँ पे डिस्कस नहीं किया है, but this will give you some thought कि ऐसे भी हो सकता है. आगे 157, dash dash is a locus of the various combinations of two inputs which a producer can buy with a given outlay and the prices of two inputs. Dash dash is a locus of, locus means collection of infinite points, right? Collection of infinite points, like curve. Simple words में, in simple words it is a curve or it may be a line. आपको जो बोलना है बोलो. Of various combinations of two inputs which a producer can buy, right, with given outlay, with given budget, expenditure and prices of two inputs. It should be budget line. ISO cost line. ISO cost line, yes. Opportunity cost line, production line, right? Profit line, no. It is ISO cost line. Again, ISO cost line is also known as outlay line, expenditure line, yes. Price line, yes. Producer's budget line, yes. All of the above. Then, if expenditure to be done on the purchase of factors increases, expenditure increase होता है, overall expenditure. The prices of both inputs remaining the same. देखो, क्या लिखा है उन्होंने? If the expenditure to be done on the purchase of factors increases, expenditure increase हो रहा है, the prices of inputs remain the same. Price same है, but expenditure increase हुआ है. ये क्यों होगा? Because you are buying more of both. You are buying more of both the inputs. Shifts upward रहेगा आंसर. कैसे? Suppose example, price of labor is 10 and price of capital is 20. Initially your budget was 100. Initially your budget is 100. So you can buy, example,
अगर आप एक कॉम्बिनेशन लेते हैं, ठीक है, ठीक है, यू कैन बाय, सपोज पूरा का पूरा अगर आप कैपिटल पे डालते हो, पूरा का पूरा लेबर पे डालते हो, यू कैन बाय 10 यूनिट्स ऑफ लेबर, और if you entirely invest in a capital, you can buy 5 units of capital. So this is your budget, this is your budget line, ध्यान देना, और ISO cost line. This is capital, this is labor. 10 units of labor, 5 units of capital. The budget line is like this. ठीक है? If your budget increases to 200, क्या लिखा है उन्होंने? ठीक से पढ़ो. Right. If the expenditure to be done on the purchase of factors increases, expenditure 200 हो गया, prices of both inputs remain same. दोनों की प्राइस सेम है, मतलब 10 and 20. Now if I spend entire amount on labor, I can buy 20 units of labor. If I spend entire amount on capital and 0 units of labor, I can buy 10 units of capital. Now the first point is 20 units of labor, 20 units of labor, and second is 10 units of capital. So this will be your new budget line. Prices has remained same. Inputs के x axis y axis पे जो products है या जो inputs है उनके prices same है, and आपका budget increase हुआ है, तो now you can buy more of both x as well as y, and you will shift to right. अगर prices of the inputs और products remain same, x axis and y axis के prices same है, जो commodities है या जो products है, and budget कम होता है, तो you will come right left, आप left में shift हो जाओगे. Are you getting my point? So इसलिए shift upward. ठीक है? Then the slope of ISO cost line can change when the outlay remains same. The slope of ISO cost line can change when the outlay remains same, but price of, देखते हैं, expenditure same है. This is your original budget line. Slope कब change होगा? जब budget line ऐसे इससे अलग रहेगी. This can be possible, yes. Slope will change. इसका slope ज्यादा होगा than this slope, because ये steeper है, अंदर वाली steeper है. या अगर ऐसे होती तो भी slope change हो जाएगा. So I mean price of x changes. Price of x changes. दूसरा, this is your budget line. Y की प्राइस इंक्रीज होती है तो आप अंदर आ गए, बजट सेम है एंड योर प्राइस ऑफ एक्स सेम है. अगर Y सस्ता हो जाता है, यू कैन बाय मोर विद द सेम बजट, स्लोप विल चेंज. सो क्या लिखा है पढ़ो. The slope of the ISO cost line can change when the outlay remains same, budget remains same, but the price of only one input change. Both the input change, both inputs remains unchanged. अगर बजट भी सेम रहता है एंड प्राइसेस ऑफ फैक्टर्स आल्सो रिमेन सेम, तो बजट लाइन कुछ भी चेंज नहीं होगी, वही रहेगी. बोथ ए एंड बी. आंसर इज बोथ ए एंड बी. शुड बी द बोथ ए एंड बी. दोनों के प्राइस, एक की एक्स की भी चेंज हो सकती है, वाई की भी चेंज हो सकती है, दोनों की भी चेंज होगी. लाइक दोनों की चेंज होती है. पहले आपका ये था, अगर दोनों सस्ते हो जाते हैं तो यू आपकी बजट लाइन ये हो जाएगी. अगर दोनों महंगे हो जाते हैं तो बजट लाइन में आप अंदर आ जाओगे. स्लोप विल चेंज. समझ में आ रहा है? सो दिस क्वेश्चंस आर नॉट एक्चुअली इकोनॉमिक्स क्वेश्चन, दीज आर मोर ऑफ द ज्योमेट्री बेस्ड क्वेश्चंस. ठीक है, आगे. द आइसो कॉस्ट लाइन in a production optimization is, ISO cost line, vertical straight line like this, then straight line sloping upward towards right, no,
straight line sloping downwards towards right. अच्छा मैंने इधर गलत लिखा था, तभी मैं सोच रहा हूं कोई भी ग्राफ का ये लेफ्ट रहता है ये राइट होता है, तभी मैं बोलूं क्या हो रहा है, आई डोंट नो। लेफ्ट टू राइट होता है ना, इसलिए मैं ये बोल रहा था राइट हैंड बिलो कॉर्नर, मतलब ये वाला कॉर्नर। अरे बराबर है ना, योर डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ना, ये लेफ्ट होता है और ये राइट होता है, ठीक है, मैंने गलत लिखा था आगे। So the straight line sloping downward towards right, left to right, बराबर। The slope of isocost line with factor y on vertical axis, एक vertical y axis पे factor y and factor x on horizontal axis, मतलब x axis पे। So क्या रहेगा, slope of iso, we know slope of a straight line is price of x upon price of y। price of y ये गलत है, x on y नहीं है, price of x upon price of y। Then and at equilibrium a particular isocont is tangent to isoline, tangent to isoline। Then where the slope of isocont is equal to slope of isocost line, means they are tangent, it is maximum cost combination of input, least cost, it is least cost, right? That will be the least cost giving you the desired output, that will be the least cost giving you desired output। एक सेकंड, least cost giving you desired output, हमने लिखा था इनमें, क्या लिखा था, राइट? given output with minimum budget, that is least cost, this is least cost budget, least cost output, ठीक है। then so where the slope of isocont is equal to slope of isocost line, means producer is in equilibrium, producer's equilibrium, it is least cost combination of inputs where marginal rate of technical substitution of x and y ये बराबर है, ये बराबर है, it is producer is in equilibrium, ये फॉर्मूला है, ठीक है। then producer is in equilibrium, आगे क्वेश्चन नंबर 166, where the isocost line is tangent to an isocont, isocost is tangent to isocont, equal amount of the factors, right? Equal amount of the factors give equal output, no. The prices of the factors are equal, no. The ratio of the price, ratio of the prices of the two factors equals marginal rate of technical, equilibrium की बात कर रहे हो ना आप, equilibrium। So least cost line is a tangent to isocost, equilibrium। So at that point ratio of the prices of two factors, मतलब ये slope of budget line or isocost is equal to MRTS is slope of isocont। So ratio of the prices of two factors is slope of isocost equals MRTS is the slope of isocont। Then so answer is 6. C. All but one of the following statements are correct. So 3 statements are correct, 1 is not correct. Find the incorrect statement. The word isocont means equal quantities, yes. Iso means equal, cont means quantity. The slope of isocont is called as marginal rate of technical substitution, agreed. The producer is at equilibrium when the producer is at equilibrium where marginal rate of technical substitution x on y
is equal to ratio of the prices. Correct? Marginal rate of technical substitution is a slope of, right? It is a slope of your isocont, and ratio of the prices is a slope of isocost. C is correct, matlab D should be the wrong. A set of isocont curves is called as isocost map. A set of isocont curve. आइसोकॉन्ट का आइसोकॉस्ट मैप कैसे रहेगा? आइसोकॉन्ट कर्व का सेट क्या होना चाहिए? आइसोकॉन्ट मैप होना चाहिए. देखो, सेट ऑफ आइसोकॉन्ट कर्व्स शुड बी कॉल्ड एज आइसोकॉन्ट मैप. इट इज आइसोकॉस्ट मैप लिखा है तो डी इज इनकरेक्ट. लिख लेना वहां पे डी. ठीक है, आंसर इज डी. 167 आंसर इज डी. 168. इफ ठीक है 168, if there is a perfect substitution, if there is a perfect substitution between two factors of production, the shape of isocont is right, it is linear. Answer is A, linear. पॉजिटिव स्लोप ऐसे ऊपर नहीं जाती, नीचे आती है, बट लीनियर रहेगी. नॉन लीनियर नहीं, नॉन लीनियर मतलब कर्व, ये स्ट्रेट लाइन रहती. तो आंसर इज ए, लीनियर. 169. Cost of condition of the producer's equilibrium is tangency of isocont and isocost. Isocont should be tangent to isocost line, agreed. At a tangency point, isocont should be convex to the origin. Yes, obviously. Isocont convex ही होनी चाहिए. Marginal productivity of x upon price of x should be equal to marginal productivity of y upon price of y. उसको swap करो, you will get price of x upon price of y is equal to marginal product of x upon marginal product of y. This is correct. If you remember, मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान देना. अब मैं आपको थोड़ा डीप में जाके एक चीज समझाता हूँ जो आपके सिलेबस में नहीं है. ध्यान देना. मुझे आज क्लिक हुआ, अब भी 1 सेकंड पहले मैं ये सोचता था ऐसे क्यों है. आई नेवर न्यू. अगर आप मेरे पहले लेक्चर मैंने रिकॉर्ड नहीं किए पहले, अगर आप बच्चों को पूछोगे तो मैंने बोला था आई डोंट नो व्हाई. बट अभी मुझे क्लिक हुआ. इफ यू कंपेयर कंज्यूमर बिहेवियर एंड प्रोड्यूसर बिहेवियर, ये क्लिक होगा. कंज्यूमर, ध्यान देना, टू बी इन इक्विलिब्रियम consumer compares prices of commodities of product with its MU. ये मानते हो या नहीं मानते हो? आप मुझे बोलो. Don't you agree with me? Consumer compares prices of product with its MU. If price is less than utility or equal to utility, price is less than utility means you get more utility than what you pay, or you get the same utility what you pay, consumer will buy. Consumer will buy product. If price is greater than utility of that output, that product, जो प्रोडक्ट हम बाय कर रहे हैं उससे ज्यादा प्राइस है, जिसका बेनिफिट मिलने वाला है उससे ज्यादा प्राइस है, कंज्यूमर विल नॉट बाय द प्रोडक्ट. बराबर. एंड टू बी इन इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर विल बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज इक्वल टू इट्स यूटिलिटी. अब कंज्यूमर चेक कर रहा है, उसका जो वो देख रहा है कि उसका बेनिफिट इन कॉस्ट कितना है, उसका बेनिफिट यूटिलिटी है. इफ यू बाय एडिशनल यूनिट, इफ यू बाय एडिशनल प्रोडक्ट, उसके लिए खर्चा कितना होने वाला है एंड उसका बेनिफिट कितना है, उसके लिए कॉस्ट कितनी लगने वाली है
और उसका बेनिफिट कितना है, कॉस्ट कितनी लगने वाली, मतलब प्राइस दैट ही हैज टू पे टू बाय द प्रोडक्ट, एंड द बेनिफिट कितना मिलने वाला है उस प्रोडक्ट से, यूटिलिटी फ्रॉम दैट प्रोडक्ट, एमयू। सो कंज्यूमर देखता है, एग्जाम्पल लिख लेना कहां पे, तो ये एग्जाम्पल, इफ प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इज 10, if you have to buy a commodity you have to pay 10 rupees, मैं कंज्यूमर का बोल रहा हूं, and the utility that consumer gets from that unit, वो बाय तो करेगा, बाय करने के लिए 10 रुपए देने पड़ रहे हैं, is rupees 10, and utility if can be measured in terms of rupees, can be measured in terms of rupees, case A, utility is rupees 15, utility is rupees 10, and suppose utility from that unit is rupees 8. In case 1 he will buy, why, because उसको 10 रुपए पे करना पड़ रहा है, उसको 15 का बेनिफिट मिल रहा है, तो ही इज इन अ प्रॉफिट, 5 रुपीज के प्रॉफिट में। एवरी डिसीजन शुड बी प्रॉफिटेबल, एटलीस्ट लॉस तो नहीं होना चाहिए, प्रॉफिट नहीं हुआ तो चलेगा बट लॉस नहीं होना चाहिए। 10 रुपए पे करके अगर 15 का बेनिफिट मिल रहा है तो यू विल गो फॉर इट, इट्स अ ग्रीन सिग्नल। सेकंड केस में भी वो बाय करेगा, बिकॉज ही हैज टू पे 10 रुपीज एंड ही विल गेट 10 का बेनिफिट, देयर इज नो लॉस, बट इन थर्ड केस he will not buy। समझ में आ रहा है? सो कंज्यूमर कंपेयर्स प्राइस विद द यूटिलिटी, प्राइस विद द मार्जिनिटी, जो प्रोडक्ट जो यूनिट परचेस करना है उसके लिए कितना पे करना पड़ेगा, एडिशनल कितना पे करना पड़ेगा, इन उससे एडिशनल बेनिफिट कितना मिलेगा। पहले वाला भूल जाओ, अभी जो परचेस कर रहे हो उससे मुझे कितना बेनिफिट मिलेगा और उसके लिए मुझे कितना देना पड़ेगा। सिमिलरली इफ प्राइस ऑफ द लेबर, मैं प्रोड्यूसर के लिए बोल रहा हूं, is rupees 100, example is rupees 100, try to understand, price of the labor is rupees 100, एक बंदा काम पे लगाने का एक दिन का 100 है उसका, एक दिन वो काम करेगा तो उसको 100 रुपीज देना है, इसे पकड़ के चलो। इफ यू हायर ए पर्सन यू हैव टू पे 100 रुपीज, आप उसको कब लोगे, ओनली इफ द बेनिफिट यू गेट फ्रॉम हिम is 100 or more than 100, and that benefit is a marginal product. Obviously I cannot express marginal product को rupees में convert करना पड़ेगा, marginal product को rupees में convert करना पड़ेगा, try to understand। and suppose I can measure marginal product in rupees, मुझे उससे 150 रुपीज का बेनिफिट मिल रहा है। जैसे यूटिलिटी को मैं प्राइस में मेजर कर रहा हूं, आई एम ट्राइंग टू मेजर इन द प्राइजेस, अगर मैं मार्जिनल प्रोडक्ट को प्राइजेस में लाइक मुझे एक यूनिट बनाना है, मुझे एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करना है, नाउ आई एम ए प्रोड्यूसर्स पॉइंट ऑफ व्यू देख रहा हूं, मुझे एक यूनिट बनाना है तो उसके लिए मैंने लेबर को बोला तू 1 घंटा काम कर, एक्स्ट्रा 1 घंटा काम कर, ये 100 रुपीज ले ले, एंड जो वो यूनिट बनाएगा, एडिशनल यूनिट बनाएगा, उससे मुझे 150 रुपीज मिलेंगे, इससे पकड़ो उसका बेनिफिट 150 है, तो मेरे जेब से 100 जाएगा बट मुझे 150 का बेनिफिट मिलेगा। I will always say I will ask him to work more। अगर मुझे उसका बेनिफिट 100 का ही मिल रहा है तो मैं बोलूंगा यार जाने दो, 100 दे रहा हूं, 100 का बेनिफिट मिल रहा है, स्टिल आई एम डन विथ इट। बट अगर मुझे बेनिफिट 80 का ही मिल रहा है, मतलब मैं उसको 100 रुपीज दे रहा हूं टू प्रोड्यूस 1 एडिशनल यूनिट, मेरे जेब से 100 जा रहा है और मुझे बेनिफिट 80 का ही मिल रहा है, सो मैं बोलूंगा नहीं यार मजा नहीं है। सो consumer compares price with the MU, producer compares right price of the factors with marginal productivity। therefore हम ऐसे बोलते हैं consumer will buy only price, consumer will buy as long as price is greater than, sorry, price is less than or equal to MU। producer will hire labor as long as wages
that price of the input, that is price of the input. This is price of product is less than or equal to mu of the product, right? Producer will hire additional labor, additional input, as long as price of the input, price of factor is less than or equal to marginal product of that factor. हम हमेशा हम मार्जिनल पे डिसीजन लेते हैं, कितना एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है, कितना बेनिफिट मिल रहा है. ये बेनिफिट इज मोर देन द एक्सपेंस, आई विल गो फॉर इट, और इक्वल टू एक्सपेंस होना चाहिए, नो प्रॉफिट नो लॉस. हमने एक और देखा था कंडीशन, लाइक मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ एक्स शुड बी इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई अपॉन प्राइस ऑफ वाई. तो मैं प्रोड्यूसर के लिए इसको ऐसे लिख सकता हूँ, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ एक्स. एक्स इज यहाँ पे इनपुट्स है, यहाँ पे एक्स प्रोडक्ट है और यहाँ पे फैक्टर है, इज इक्वल टू मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ वाई अपॉन प्राइस ऑफ वाई. कंज्यूमर की इक्विलिब्रियम की कंडीशन, प्रोड्यूसर की इक्विलिब्रियम की कंडीशन. समझ में आ रहा है? तो ऐसे आप सोच सकते हो आगे. नेक्स्ट, सो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट, technically efficient combination of inputs is those which efficient combination of input. कौन सा efficient combination होता है? जहां पे cost minimum रहती है, which minimizes the cost. अच्छा, minimizes loss नहीं, minimizes cost. Technically efficient combination of input is those which minimizes the cost. अच्छा, इंटरनल इकोनॉमीज पेंडिंग, वो कॉस्ट के बाद लेने वाला हूं मैं. एक्सटर्नल इकोनॉमीज पेंडिंग, yes, 175. A firm uses two inputs, labor and capital. Firm uses two inputs, labor and capital. The firm produces and sells given output. Produce and sells a given output. Okay. You have the following information. Price of labor, PL, actually price of labor है वो 40. Price of capital 100. K stands for capital. ठीक है. मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर, ठीक से लिख लेना वहां पे जिनको डाउट है. दिस इज प्राइस ऑफ लेबर. दिस इज प्राइस ऑफ कैपिटल. MPK, marginal product of capital and marginal product of labor. This is marginal product of labor, marginal product of capital. ठीक है. What would you say about the firm? देखते हैं. प्राइस ऑफ लेबर अपॉन, देखते हैं that the firm is operating efficiently. अच्छा, हम इसको सॉल्व करना पड़ेगा हमें. देखो मैं कैसे सॉल्व करता हूं. मैंने ढूंढा व्हाट इज प्राइस ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ वाई. राइट, ढूंढो प्राइस ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ वाई. प्राइस ऑफ एक्स इज मतलब लेबर सपोज 40 है, प्राइस ऑफ वाई कैपिटल सपोज 100. बराबर. देन marginal product of labor upon marginal product of capital. Marginal product of labor is 40, marginal is 40. So this is, you can find it is 40 divided by 100 is less than 1. 0.4 is less than 1. What will you say about the firm?
that the firm is operating efficiently. No, अगर equal होता, ये दोनों equal होते हैं तो efficiently रहेगा. So this is wrong. That the firm is not operating efficiently. Do agree? Are they equal or no? No, they are not equal. So answer 2 and 4. 2 and 4 D. 2 and 4. देखो मैंने कैसे किया है, एक बार चेक करो अगर किसको नहीं समझा है. When they are efficiently, जब ये दोनों equal रहेंगे, ये दोनों इक्वल रहेंगे. अरे यही तो हमारा फॉर्मूला है ना, यहाँ पे देखो ना. अगर ये फॉर्मूला नहीं तो ये वाला फॉर्मूला देखो. ठीक है. सो रेशियो ऑफ द प्राइजेस इज 0.4. रेशियो ऑफ द प्राइजेस इज 0.4. रेशियो ऑफ द मार्जिनल प्रोडक्टिविटीज इज 1. सो 0.4 इज नॉट इक्वल टू 1. इट मींस दे आर नॉट एफिशिएंटली वर्किंग. समझ में आ रहा है? एंड देयरफॉर 2 and 4 आर करेक्ट. Then a firm can hire additional labor at rupees 50 per hour. Additional labor at 50. So this is marginal. I will say, right? This is a price that I have to pay to the labor. 50 rupees pay करने होंगे 1 घंटे के. By hiring 10 more hours of labor. मैं उसको 10 घंटे अगर काम करने को बोलता हूं, ध्यान देना, मैं बोलता हूं तू और 10 घंटे काम कर, 1 घंटे के मैं 50 रुपीज दूंगा तुझे. ए फर्म कैन हायर एडिशनल लेबर एट रुपीज 50 पर आवर. तू 1 घंटा काम करेगा तो 50 मिलेगा. अगर तू 10 घंटे काम करेगा तो 500 रुपीज तुझे देना पड़ेगा. बाय हायरिंग 10 मोर आवर्स ऑफ लेबर, आउटपुट विल इंक्रीज बाय 3 यूनिट्स. मुझे कितना खर्चा करना पड़ेगा, मेरी कॉस्ट कितनी रहेगी? 10 घंटे अगर वो काम करेगा 50, मेरी कॉस्ट रहेगी 500. एडिशनल कॉस्ट रहेगी 500. बट वो कुछ तो प्रोड्यूस करेगा, वो लेबर कुछ तो प्रोड्यूस करेगा. बेनिफिट देखे हो कितना है? He will, right, the output will increase by 3 units. Output will increase by 3 units if per unit sales is rupees 200. रेवेन्यू कितना होगा? अगर वो 10 घंटे काम करेगा, अगर वो 10 घंटे काम करेगा तो मुझे 500 रुपए देना पड़ेगा. बट वो जो प्रोड्यूस करेगा उससे मुझे मिलेगा कितना? 3 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 200. मुझे मिलेगा कितना? 600. I am at a profit of rupees 100. Right? Should the firm hire the labor? And if yes, why? What do you think? Should the firm hire the labor? उसको लेना चाहिए क्या काम पे? Yes. Yes or no? अगर वो 10 घंटे काम करेगा, ठीक है, अगर वो 10 घंटे काम करेगा तो 500 रुपीज देने पड़ेंगे. वो उस 10 घंटे में 3 यूनिट बनाएगा. 10 घंटे में 3 यूनिट बनाएगा और 3 यूनिट की सेलिंग प्राइस पर यूनिट सेल्स फॉर रुपीज 200, तो 600 रुपीज सेल्स होगा. माय प्रॉफिट इज 100, तो ऑब्वियसली आई विल गो फॉर हिम ना. नो, राइट? शुड द फर्म हायर द लेबर? नो का आंसर रॉन्ग है. यस, बिकॉज मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ द लेबर इज, मतलब रुपीज 200 इज मोर देन रुपीज 50. ठीक है, या आप ऐसे बोलो, ये पूरा देखने से आंसर एस. नीदर ए और बी, ओनली ए. आंसर इज बी. ऐसे क्वेश्चंस कॉमन सेंस के क्वेश्चंस हैं. आगे देन if marginal rate of technical substitution of labor for capital, लेबर गेन कर रहे हो, जो पहले लिखा है वो गेन रहेगा, तो एक्स एक्सिस पे लेबर है, वाई एक्सिस पे कैपिटल है, इक्वल्स टू 2. देन मार्जिन, देखो ध्यान देना, this is labor, this is capital, and marginal rate of technical substitution equals to 2. मतलब equals to 2. Change in the y, change in the capital, K stands for capital. Change in the labor is 2 by 1. Then marginal productivity of K to marginal productivity of L is
it is also equal to प्राइस ऑफ कैपिटल, नहीं, प्राइस ऑफ लेबर अपॉन प्राइस ऑफ कैपिटल रहेगा ना, एक्स एक्सिस की प्राइस अपन वाई एक्सिस की प्राइस, इफ इट इन इक्विलिब्रियम। सो उन्होंने बोला है इट शुड बी इक्वल टू मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर अपन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल, और उन्होंने इसका रेसिप्रोकल बोला 1/2 होना चाहिए आंसर, 1/2। कैसे, ध्यान देना, एक सेकंड एवरीवन। वी नो द फॉर्मूला, हमें क्या फॉर्मूला पता है, ध्यान देना। वी नो द इक्विलिब्रियम का फॉर्मूला, व्हाट इज इक्विलिब्रियम फॉर्मूला? मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन of labor for capital is change in the capital upon change in the labor, ठीक है, also equal to price of x axis labor upon price of y axis capital, which is also equal to marginal product of labor upon marginal product of MP of capital, and they have given you this ये उन्होंने आपको 2 दिया है, 2 means 2/1, so marginal product of labor upon marginal product of capital is 2, marginal product of labor upon marginal product of capital is 2, और यहाँ पे उसका रेसिप्रोकल है, दिस इज रेसिप्रोकल, सो 2 का रेसिप्रोकल 1/2, 2 का रेसिप्रोकल 1/2, देन इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन आई डोंट थिंक इंस्टीट्यूट विल आस्क, बट अगर ये समझ में आ गए ना, आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। सपोज दैट वी आर प्रोड्यूसिंग होल्स, वो the only way to get a hole is to use one man and one shovel, one man, only way to get a hole is to use one man, one labor and one shovel, मतलब capital type. What will be the shape of isocont? Only way to get a hole is use of one man and one shovel. एक होल के लिए एक मैन, एक लेबर एंड एक कैपिटल चाहिए. If you have to produce 2 holes, you require 2 labor and 2 shovels, right? Then suppose that we are producing holes. The only way to get a hole is use of one man and one shovel. What shall be the shape of the isocont? Isocont. The only way to get a hole is use of one man and one shovel. Can anyone explain me? I didn't get the question basically. अरे अगर perfect complementary होते हैं ना, तो they should be like this. Perfect complementary है ना, तो वो ऐसे होने चाहिए. Downward sloping convex to the origin, downward sloping straight line curve, वो perfect substitute रहेंगे. Downward sloping and concave to the origin, right angle करो, right angle करो, D. हाँ, मैंने वो ऑप्शन देखा ही नहीं. अरे if you have to produce a hole, you require one man and one shovel. If you have to produce two men and two shovels. If you have to produce three men and 3 shovels. So they are perfect complementary. Yes, वही मैंने बोला क्या हो गया, मैंने ये लास्ट देखा ही नहीं था ऑप्शन. This is perfect
कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स लिख लेना. If you have to produce 10, you require 10 main and 10 shovel. So आप y एक्सिस पे भी ऊपर जा रहे हो, x एक्सिस पे भी ऊपर जा रहे हो. So अगर आपको एक प्रोड्यूस करना है तो एक एक चाहिए, दोनों एक एक चाहिए. अगर आपको दो प्रोड्यूस करने तो दोनों दो दो चाहिए, ऐसे समझो. तीन प्रोड्यूस करने तो दोनों तीन तीन चाहिए. अगर 10 प्रोड्यूस करने तो दोनों 10 चाहिए. So आपको क्या मिलेगा? You will go upward on the y axis, you will go leftward towards rightward towards y x axis. So you will get right angle curve. Answer is D. They are perfect substitutes. पहले मुझे क्वेश्चन समझा नहीं और मैं ऑप्शन देख रहा था तो वो मुझे पता नहीं, वो क्लिक नहीं हुआ ऑप्शन. राइट एंगल कर्व. You are doing a homework. The inputs needed to produce homework is a blue ink pen or a black ink pen. Substitute से. What shall be the shape of isocont? Downward sloping. They are perfect substitutes. Black ink pen or blue ink pen or black ink pen, they are perfect substitutes. दोनों में से कुछ भी चलेगा. अगर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स हो गए इनपुट्स तो हमें मिलेगी डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइक दिस. ठीक है, आगे. When 5 units of variable factors are combined with 5 units of fixed factor, 5 units of variable factors are combined with 5 units of fixed factor and the MP remains constant at 10. Find the TP. When 5 units of variable factor are combined with 5 units of fixed factor and MP remains constant at 10. For every 5 units, MP is a constant at 10. मतलब first unit 10, second unit 10, third unit 10, first variable factor से 10 MP है, second का 10 है, third का 10 है, like that. So can I say total is 50? Total should be 50. MP is constant at 10 units. मतलब first variable factor का MP 10 है, second variable factor का MP 10 है, third variable factor का 10 है, like that. So 10 plus 10 plus 10 plus 10 plus 10, 50. आगे. The production function of a firm is Q. Right, Q. Actually ये ऐसे लिखो उसको. ये टाइप करते टाइम एरर हुई है. इसको चेंज करो. Q is equal to 5 L raised to 1/2. Right. K raised to 1/2. ठीक है, ऐसे. दोनों की टोटल कितनी आ रही है? 1/2 plus 1/2. बोलो. 1/2 plus 1/2 is 1. Aren't you getting me? So in exponents की टोटल लेनी है. 1/2 plus 1/2 is equal to 1. So when A plus B is equal to 1, when A plus B is equal to 1, we are into constant returns to scale. Constant returns to scale means if you increase out scale by 10%, output will also increase by 10%. If you decrease scale by 20%, output will also decrease by 20%. So exponent की total ले लो. 1/2 plus 1/2 is 1. What will be the maximum possible output of a firm? Right? What will be maximum possible output of the firm that the firm can produce with 100 units of labor and 100 units of capital? अच्छा solve करना ही है. ठीक है. Q is equal to 5 multiplied by 100 units of labor, 100 raised to 1/2, 100 units of capital raised to 1/2, which is also equal to 5 multiplied by square root of 100 multiplied by square root of 100. Q is equal to 5 multiplied by 10 multiplied by 10, 500. You have to solve math से.
यू हैव टू सॉल्व इट. समझा या नहीं? देन आगे, एंड ये रिटर्न्स कौन से कांस्टेंट रिटर्न स्केल है, लिख लेना. रिटर्न्स आर कांस्टेंट रिटर्न स्केल बिकॉज टोटल ऑफ द एक्सपोनेंट इज 1. टोटल ऑफ एक्सपोनेंट इज 1. होमोजेनियस प्रोडक्शन, लीनियर होमोजेनियस प्रोडक्शन फंक्शन है, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल. आगे, the production function of a firm is q is equal to 2 multiply by 2 is a constant, positive constant, multiply by labor raised to 2, capital raised to 2. Find out the output that a firm can produce with 5 units of labor and 2 units of capital. 5 units of labor and 2 units of capital. अच्छा, स्क्वायर है तो इजीली हो जाएगा. सो q is equal to 2 multiply by L is 5, 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय k 2 units, 2 का स्क्वायर, 2 multiply by 25 multiply by 4, 100, 200 I think. आंसर इज बी, लिख लेना, आंसर इज बी. पॉइंट इज मल्टीप्लीकेशन. देन ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, वो कुछ भी पूछ सकते हैं, बट अगर आपको पता है ना कि आपको फॉर्मूला पता है, आपको उनके नेचर पता है, तो आप आंसर दे सकते हो. व्हाट विल बी द आउटपुट विथ 10 units of labor and 10 units of capital if the production function is q is equal to 5 multiplied by L, 5 multiplied by 10, 50, 50 plus 2 multiplied by 10, 20, 50 plus 20, answer is 70. Answer is 70. ठीक है. From the following, find out AP and MP of the fourth labor. AP and MP of the fourth labor. Change in the total output minus 10. When you employed 3 labor, when you employed 3 laborers, their total output was 50. When you employed fourth labor, their total output is 40. So total output has decreased by 10 because of fourth labor. So fourth labor की efficiency negative 10 है. And they ask us to find out average product, 40 divided by 4, 10. So minus 10 and plus 10. कुछ गलत है? अच्छा, पहले एपी पूछा है और बाद में एमपी पूछा है. फर्स्ट इज एपी एंड देन एमपी. सो 10 minus 10, 10 minus 10. ठीक है. किसके क्वेश्चन से रिलेटेड यू कैन आस्क मी. अगर कोई क्वेश्चन नहीं हुआ है तो ये जो एडिशनल क्वेश्चंस है ना, एक सेकंड, ये जो नीचे के एडिशनल क्वेश्चंस है, इनको है ना, इधर वीआईएमपी, ये लास्ट के दो, प्रोडक्शन कॉस्ट, रेवेन्यू एंड मार्केट. दिस क्वेश्चंस जब सीपीटी थी, सीपीटी, तब इंस्टीट्यूट ने 30 क्वेश्चन पेपर्स दिए थे बच्चों को प्रैक्टिस के लिए. तो 30 क्वेश्चन पेपर्स थे, उसके सब क्वेश्चंस है वो एडिशनल क्वेश्चंस फॉर प्रोडक्शन एंड कॉस्ट. इंस्टीट्यूट ने जो क्वेश्चन दिए थे ना प्रैक्टिस के लिए, वो सब क्वेश्चंस है, एंड ऑल क्वेश्चंस आर रियली गुड. डिफिकल्ट भी है, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस है. सो 6 and 7 आर वीआईएमपी, वो इंस्टीट्यूट के क्वेश्चंस है. नाउ दिस क्वेश्चंस आर नॉट अवेलेबल ऑन द वेबसाइट, डिलीट कर दिए उन लोगों ने, राइट. सो वो क्वेश्चंस है, उनका कंपाइलेशन है. ठीक है. एडिशनल क्वेश्चंस 7-8 हुआ है.
इनमें से दो तीन मुझे इंपॉर्टेंट है, वो मैं लेता हूं। ये टोटल कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट है। अच्छा, पेज नंबर आ जाओ 145। 145 नोट्स में 145 पेज नंबर। The following table exhibits, they have given you number of workers and total output. They have asked you following table represents increasing marginal product, diminishing marginal product, returns to scale. पहले तो हम खाली लेबर चेंज कर रहे हैं, we are changing workers, we are not changing scale. हाँ, वर्कर एंड कैपिटल होता तो मैं बोलता स्केल चेंज हो रही है। सो आंसर सी एंड आंसर डी डिलीट हो गए। आंसर सी एंड आंसर डी क्यों डिलीट हुए? बिकॉज वी आर जस्ट चेंजिंग वर्कर्स, वी आर इन अ शॉर्ट रन। लिख लेना, वी आर चेंजिंग वर्कर्स, वी आर इंक्रीजिंग वर्कर्स, ओनली लेबर, दैट इज शॉर्ट रन। इसलिए सी एंड डी रिटर्न्स टू स्केल कैंसल। अब हमें ढूंढना है वेदर एमपी इज इंक्रीजिंग और एमपी इज डिक्रीजिंग। देखते हैं, एमपी ढूंढना होगा। 13 40 minus 23 17 10 23 17 10 एमपी इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है? डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर, डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर। नेक्स्ट, यस, क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62। Consider the following combinations of input and output. The production technology satisfies. This production technology satisfies. लेबर 5 था, कैपिटल 10। लेबर इंक्रीज हुआ, कैपिटल इंक्रीज हुआ, लेबर इंक्रीज हुआ, कैपिटल इंक्रीज हुआ, बोथ आर इंक्रीजिंग, बोथ आर इंक्रीजिंग, बोथ। लिख लेना, कौन सा रन है ये, शॉर्ट रन या लॉन्ग रन है? टाइप मी द आंसर, इज इट शॉर्ट रन और लॉन्ग रन? इज इट शॉर्ट रन और लॉन्ग रन? इट हैज टू बी लॉन्ग रन। देखो इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन है ना, वो सीपीटी के इतने अच्छे, इतने अच्छे क्वेश्चन थे ना, बेस्ट क्वेश्चन थे। दिस इज लॉन्ग रन एज बोथ लेबर एंड कैपिटल इज इंक्रीजिंग, इज चेंजिंग है, इंक्रीजिंग, दोनों वेरी हो रहे हैं लॉन्ग रन। सो लॉन्ग रन में कौन सा रिटर्न्स टू वेरिएबल प्रोपोर्शन रहेगा या रिटर्न्स टू स्केल रहेगा? रिटर्न्स टू स्केल, इतना क्लिक होना चाहिए। अच्छा देखो, आपने एक इसको 1 से इंक्रीज किया, इसको 2 से इंक्रीज किया, इसको 1 से इंक्रीज किया, 2 से, 1 से इंक्रीज किया, 2 से। सो एक फिक्स प्रोपोर्शन में इंक्रीज हो रहा है, वेरिएबल एक से इंक्रीज हो रहा है एंड कैपिटल फिक्स 2 से इंक्रीज हो रहा है। ऐसे ऑब्जर्वेशन देखो, क्वेश्चन कैसे ड्राफ्ट किया उन्होंने। यू आर चेंजिंग द स्केल, आप स्केल चेंज कर रहे हो। अच्छा देखते हैं, उन्होंने बोला है, अब देखो जब हम लॉन्ग रन में जो हमने प्रोडक्शन फंक्शन सीखा है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल एंड डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये एमपी कर्व है, ये एमपी है, लोगों को लगता है ये टोटल प्रोडक्ट है, ये टोटल प्रोडक्ट नहीं है, ये एमपी है। तो मुझे एमपी ढूंढना होगा।
1 1 1 1 1. My MP is constant. As I am increasing the scale, जैसे जैसे मैं स्केल इंक्रीज कर रहा हूं, लेबर भी चेंज कर रहा हूं, कैपिटल भी चेंज कर रहा हूं, my MP is constant. So constant returns to scale. Answer is constant returns to scale. समझा या नहीं समझा? किसको ये नहीं समझा, रेज द हैंड. आपको लगेगा टोटल आउटपुट इंक्रीज हो रहा है, मतलब इंक्रीज, बच्चे लिख के आते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल. अरे ये एमपी कर्व है, समझा? सो फाइंड आउट द एमपी. जब भी रिटर्न्स का आंसर लिखने हैं तो एमपी ढूंढो. अगर एमपी इंक्रीजिंग होता तो इंक्रीजिंग रिटर्न्स, एमपी कांस्टेंट है कांस्टेंट, अगर एमपी डिक्रीजिंग है तो डिक्रीजिंग. देखो क्वेश्चन नंबर 63. ठीक है. विथ ए व्यू टू इंक्रीज हिज प्रोडक्शन, हरिहरन, अरे मैडम लॉन्ग रन तो समझाना, मतलब आंसर रिटर्न टू स्केल. व्हाट इज योर एमपी? देखो आउटपुट 1 से 2 हो गया, एमपी इज 1. फिर 2 से 3 हो गया, एमपी इज 1. 3 से 4 हो गया, एमपी इज 1. मार्जिनल प्रोडक्ट इज सेम ना, marginal product is constant. As you are increasing scale, marginal product is a constant. इसलिए आंसर इज कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल. अगर मार्जिनल प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा तो आंसर कांस्टेंट रहेगा. मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीजिंग होता होगा तो इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल. अगर मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीज होता होगा तो डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल. ठीक है, आगे. With a view to increase his production, Hariharan, a manufacturer of the shoes, increases all factors of production. All factors क्लिक होना चाहिए, लॉन्ग रन, मतलब रिटर्न्स टू स्केल, मतलब आंसर है रिटर्न्स टू स्केल वाला. ठीक है. ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन हिज यूनिट बाय 100%. इनपुट्स इंक्रीज, स्केल इंक्रीज बाय 100%. स्केल डबल कर दी 100%. But at the end of the year, he finds instead of increase of 100%, his production has increased by only 80%. Which law of returns to scale he is operating in this case? A, B, C, D. बोलो मुझे. Scale increase by 100%, output increase just by 80%. You have to tell me A, B, C, D. Yes, please. जल्दी. किस में रहेगा वो, कौन से स्केल में रहेगा? अगर इनपुट 100% से इंक्रीज हो रहे, स्केल 100% से, अगर आउटपुट 100 से ज्यादा से होता तो हम बोलते हैं इंक्रीज रिटर्न्स टू स्केल. आउटपुट 100 से इंक्रीज होता तो हम उसको बोलते हैं कांस्टेंट. अगर आउटपुट 100 से कम से, आउटपुट मींस मार्जिनल प्रोडक्ट बोल रहा हूं मैं. जब मैं ये जो उन्होंने लिखा है, ट्राई टू अंडरस्टैंड वर्डिंग, ट्राई टू अंडरस्टैंड. उन्होंने 100% से स्केल इंक्रीज की एंड उसके वजह से 100% से आउटपुट चेंज हुआ. आउटपुट चेंज हुआ मतलब मार्जिनल प्रोडक्ट. तो यहाँ पे हुआ है मार्जिनल प्रोडक्ट आउटपुट हैज चेंज, मतलब मार्जिनल प्रोडक्ट हैज चेंज बाय 80%. समझ में आ रहा है? इट इज लेस देन इंक्रीज इन द इनपुट. आप ज्यादा एफर्ट डाल रहे हो, 100% एफर्ट डाल रहे हो, बट रिजल्ट 80% ही आ रहा है, तो यू आर इन डिमिनिशिंग और डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल बी. ठीक है, आगे. लीनियर होमोजेनियस प्रोडक्शन फंक्शन इज बेस्ड ऑन, एंड दिस क्वेश्चंस, ये जो एडिशनल क्वेश्चंस है ना, एक के एक क्वेश्चन आना चाहिए, इंस्टीट्यूट के क्वेश्चंस है. Linear homogeneous production function is based on increasing, decreasing, constant, or none of the above. Linear homogeneous production function is also called as constant returns to scale. ठीक है. सेवेंटी फोर.
The efficient scale of the production is the quantity of output that minimizes. अच्छा ये कॉस्ट का है, मिनिमाइजेस द कॉस्ट होता है, ठीक है। अभी तक मैंने कॉस्ट पे गया नहीं ना मैं। कैन यू कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 104 टू 106? पिंग मी द आंसर, एक ही साथ आंसर लिख दो। 104 टू 106, 4 5 6। चलो जल्दी करो। बोलो, एक साथ आंसर लिखो, ABCD जो भी रहेगा वैसे। And unless and until you participate, you will never get the correct answers, or you will never understand the concepts. Okay, good. देखो, when number of labor is 0, total output will be 0, marginal product has to be 0. जब लेबर ही काम पे नहीं रहेगा तो आउटपुट किधर से आएगा, ठीक है। सो नाउ फर्स्ट लेबर कम्स इनटू पिक्चर, टोटल आउटपुट 100 है तो उसका मार्जिनल प्रोडक्ट भी 100 है। देन सेकंड लेबर आ गया, सेकंड लेबर ने 80 कंट्रीब्यूट किया। मार्जिनल मतलब कंट्रीब्यूशन, कितना कंट्रीब्यूट किया सेकंड ने, 80। पहले ने 100 कंट्रीब्यूट किया था, दूसरे ने 80, तो ये कितना होगा टोटल 180। जब थर्ड लेबर आया तो योर टोटल आउटपुट इंक्रीज बाय 240। सो थर्ड आने के वजह से टोटल में कितना चेंज हुआ है, आई थिंक 60। सो द आंसर्स वहां पे लिख दो आपके यहाँ पे, व्हाट इज द टोटल आउटपुट व्हेन टू लेबर्स आर एम्प्लॉयड, 180। व्हाट इज द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ द थर्ड लेबर या थर्ड आर, जो कुछ भी है, is 60। And what is the average product of the first three? Average product of first 3 hours. Total product of the first 3 hours divided by 3 hours. 80. So answer is CAB. CAB. Check करो है क्या? CAB. Now 107. 107. If 1 unit of labor and 1 unit of capital give 200 units of output. एक लेबर और एक कैपिटल ने 200 यूनिट्स प्रोड्यूस किया। 2 यूनिट्स ऑफ लेबर एंड 2 यूनिट्स ऑफ कैपिटल गिव 400। आपने डबल किया, पहले एक एक थे। देखो कैसे सोचना है, लेबर कितना है, कैपिटल कितना है। एक बंदा एक कैपिटल, आउटपुट टोटल आउटपुट टीपी इज 200। आपने दो दो काम पे लगाया, मतलब आपने स्किल डबल की। पहले एक बंदा एक कैपिटल था, नाउ 2 लेबर एंड 2 कैपिटल प्रोड्यूस 400। आपने यहां पे 2 टाइम्स किया, स्केल 2 टाइम्स से इंक्रीज की, आउटपुट भी 2 टाइम्स इंक्रीज हुआ।
जितने से स्केल चेंज हो रही है उतने से आउटपुट चेंज हो रहा है। आगे gives 400 units of output, 5 labors and 5 capitals gives 1000 output. The firm, ये कौन सी केस है? देखो यहाँ पे आपने 5 टाइम्स किया, लेबर 5 टाइम्स किया, कैपिटल 5 टाइम्स किया, मतलब स्केल 5 टाइम्स हो गई, आउटपुट भी 5 टाइम्स हो गया, 200 का 1000 हो गया। जितने एफर्ट डाल रहे हो एग्जैक्टली उतना आउटपुट आ रहा है। तो व्हाट इज योर आंसर? यू आर इन विच रिटर्न्स? बोलो एनीवन, ए बी सी डी। यू आर इनटू कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। अरे नहीं नहीं समझा तो पूछो, मैं बोल दूंगा फिर से। क्या बोल रहा हूँ ध्यान देना। मेरे पास पहले एक लेबर और एक कैपिटल था, दोनों ने मिला के 200 किया, मैंने डबल कर दिया, मेरा आउटपुट भी डबल हो गया। मैंने उनको 5 टाइम्स कर दिया, मेरा आउटपुट भी 5 टाइम्स हो गया। जितने से स्केल चेंज हो रही है उतने से उतने टाइम से आउटपुट भी चेंज हो रहा है। सो इट हैज टू बी कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। ये 113 114 निकालो जल्दी, एक दो क्वेश्चन इसी बाकी है, करो कंप्लीट उनको। चलो इन दोनों को खत्म करो। पहले टेबल कंप्लीट आना करना आना चाहिए। जिसको टेबल आ गए ना वो कुछ भी आंसर दे सकता है। टोटल आउटपुट, जब 0 लेबर रहेंगे, 0 आवर्स ऑफ लेबर, 0 0। टोटल आउटपुट फर्स्ट घंटा काम करने से आउटपुट 200 बन गया, मार्जिनल प्रोडक्ट 200। फिर सेकंड घंटे में, सेकंड आवर में 160 इफिशिएंसी, सेकंड आवर में 160 आउटपुट बना, सो टोटल हुआ 360। देन यहाँ पे 120। So what is the total output of the 2 hours of labor? 2 hours का total is 360. And what is the marginal product of the third hour of labor? Marginal product is 120. इसके क्वेश्चंस कहाँ पे तो गायब हुए, इसके क्वेश्चन ही किधर तो गायब है, ढूंढना पड़ेगा मुझे, वो कॉपी पेस्ट करते टाइम आगे पीछे हुए होंगे। ओके, ऑलमोस्ट प्रोडक्शन के मैंने जो जो मुझे लगे सामने दिखे वो मैंने करवा लिया। ये करो रे, 7 to 11, ये लास्ट क्वेश्चन है, 7 to 11 एडिशनल में से। जिनको चाहिए पेज नंबर 141 जल्दी करो। 7 to 11, you have 3 minutes. अच्छा ठीक है, ये थोड़ा कॉस्ट और प्रोडक्शन मिक्स है। ठीक है, ये कॉस्ट एंड प्रोडक्शन मिक्स है, वो मैं कॉस्ट फंक्शन के बाद अपने आप आ जाएगा। सॉरी, नीचे वाला करो, ये वाला, ये रहेगा, ये रहेगा। ये जिनका मैथ्स अच्छा है वो कर भी सकते। 13 to 17 ये करो। चलो पहले टेबल कंप्लीट करते हैं, लेट्स सी। व्हेन आउटपुट इज 0, when labor input is 0, output is 0, average product is 0, marginal product is 0. Then average product of 2 labors is 25. Average product of 2 labors is 25. So what is total product? 50. 2 multiplied by 25. 2 multiplied by 25. Then
4 labor. Average product of 4 labor 90 divided by 4 22.50. 22.50 ये कितना आएगा? 50 90 हुआ है, 50 has increased to 90, so 40 divided by 2, labor is changed by 2, so this is 20. बच्चे 40 बोलते हैं, अरे ये जो 40 इंक्रीज हुआ है आउटपुट बिकॉज ऑफ 2 लेबर्स, सो पर लेबर 20. अच्छा यहाँ पे एवरेज कितना आएगा? ये 20 एवरेज आएगा, 120 डिवाइडेड बाय 6, और ये कितना आ जाएगा? 90 has become 120, so 30 in output increased by 30 because of 2 labors 15. 140 divided by 8 एवरेज आएगा 17.5. 17.5 मार्जिनल कितना होगा? 120 has become 140, 20 divided by 2, change in the labor is 2, 10. यहां पे 0, decrease by 20 minus 20 divided by 2 minus 10. Now I have everything with me. ये समझा मैंने ये डिवाइड बाय 2 क्यों किया है? Marginal product is change in the total product upon change in labor. Change in the labor is 2. Try to understand at every place. At a labor input 2, output is labor input 2, output is 50. At labor input 4, output per worker मतलब average. At labor input 4, average product is 22.50. At labor input 6, marginal product 6 का marginal product कितना है? 15. Output per worker is maximized at a labor input of, output per worker is maximized. AP per worker मतलब AP is maximum. कहां पे AP maximum है? AP maximum कहां पे? 0, 25, 22, 20, 17, 14, 10. मैक्सिमम कहां पे AP? AP मैक्सिमम कहां पे? सेकंड लेबर, 2 लेबर्स. आंसर इज 2 लेबर्स. आउटपुट पर वर्कर एवरेज प्रोडक्ट इज मैक्सिमम. ढूंढो ना, आपके पास एवरेज प्रोडक्ट सब है, तो मैक्सिमम कहां पे? 25 इज अ मैक्सिमम एवरेज प्रोडक्ट, तो वो कितने लेबर पे? 2. देयरफॉर आंसर इज 2. The firm's output in the short run, firm's output is at short run maximum at a labor input of, the firm's output is at short run maximum. आउटपुट मैक्सिमम कहां पे? मैक्सिमम आउटपुट, टोटल आउटपुट मैक्सिमम कहां पे? देखो मैक्सिमम एंड कांस्टेंट 10. मिला? उन्होंने हमें पूछा है मैक्सिमम एपी कहां पे? 2 लेबर्स पे. मैक्सिमम आउटपुट कहां पे? 10 पे. मैक्सिमम एमपी कहां पे? मैक्सिमम एमपी भी 2 पे. ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे. दे विल गिव यू द डेटा, यू हैव टू कंप्लीट द डेटा, यू हैव टू आंसर इट. ट्राई टू अंडरस्टैंड. ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है. एमपी शुड बी 50 कहां पे? नो कहां पे एमपी शुड बी 50? सर एमपी शुड बी 50. नहीं, 0 has become 50. 0 has become 50 because of 2 labors. So this is 50 divided by 2, 25. यहाँ पे 50 has become 90. So 40 because of 2 has become 4. So 40 divided by 2, 20. ऐसे करना होता है. ठीक है? I think I'm clear now. Then
इसमें से बाकी क्वेश्चंस आप अगर प्रोडक्शन रिलेटेड है तो करो, राइट। अगर कोई डाउट आता है तो मुझे पूछो। मैक्सिमम क्वेश्चंस मैंने लिए हैं। कल सैटरडे, ओके, कल आई वोंट बी टेकिंग इको, इवनिंग में मैं अकाउंट से ले लूंगा, आफ्टरनून अकाउंट्स, इवनिंग अकाउंट्स, ठीक है। सो हम कॉस्ट फंक्शन मंडे से स्टार्ट करेंगे एंड एक वीक में कॉस्ट फंक्शन पूरे हो जाएंगे, ठीक है। सो ऐसे पकड़ के चलो, जुलाई एंड अपना कॉस्ट फंक्शन डन। सो चैप्टर 2 चैप्टर 3 पूरा हुआ है। नेक्स्ट 2 वीक्स चैप्टर 4 हो जाएगा, नेक्स्ट 2 वीक्स चैप्टर 4, या 3 वीक पकड़ के चलो, मैं स्लो जाऊंगा। और लास्ट वीक ऑफ अगस्त चैप्टर 2, लास्ट चैप्टर एंड फर्स्ट चैप्टर, दो दो तीन तीन लेक्चर के हैं। सो अगस्त एंड इको डन, अगस्त एंड इको डन। 3 वीक्स ऑफ सितंबर बीसी बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज डन। सो मेरा टारगेट है, अगर पॉसिबल होता है तो 21 सितंबर के पहले मैं खत्म कर दूंगा पूरा 100 मार्क्स का इको, मैं खत्म कर दूंगा। बट आपने पढ़ाई करनी चाहिए। देखो मैं क्वेश्चन भी सॉल्व कर, मैं खाली सिखा नहीं रहा हूं, आई एम ऑल्सो सॉल्विंग एमसीक्यूज फॉर योर कंसेप्ट्स, कि आपको और क्रिस्टलाइज हो। डिस्कस कर रहा हूँ एमसीक्यूज, खाली आंसर नहीं दे रहा हूँ। अगर आपको नहीं कोई चीजें समझ में आती, डू आस्क मी, डू रीड द मॉड्यूल। दूसरा बुक कोई मत पढ़ो, मॉड्यूल इतने अच्छे से पढ़ो। डेली 4 या 5 पेजेस पढ़ने के, डेली रिवाइज करते रहने का, अंडरलाइन करो, नोट्स बनाओ। नोट्स की भी जरूरत नहीं है, जो मैंने लिख के दिया वो भी 4-5 बार पढ़ते हो ना, हर चीज कवर हो जाएगी, हर चीज, ठीक है। सो वी आर राइट, एकदम परफेक्ट स्पीड पे चल रहा है। डेली हम ऑलमोस्ट 2 आवर्स करते हैं, इसलिए राइट लगेगा कि बहुत जल्दी खत्म हो रहा है क्या, क्या वैसे नहीं है। वी स्टार्टेड लेट बेसिकली, बहुत लेट स्टार्ट किया को, बट डेली 2 आवर्स इज गुड, ठीक है। चलो